Hi, this is Naila Shahwar, and many of you were requesting that you want some kind of revision, some kind of MCQ portion or one-shot revision type of a grade 10. So in this video, I have tried to cover the maximum portion of life processes through MCQs. We'll try to solve a lot of MCQs so that many concepts become clear in your mind. So on your request, we have brought this MCQ portion of the very first chapter, that is life processes. So let's get started. These are diagram based questions that you can see over here. The very first is study the diagram given below carefully and identify B, D and C. So over here, as you can see, this is the B portion. B is esophagus. D over here, they are asking you D. D is stomach and C is liver. So the first one is esophagus, then you have a stomach and the last one is liver. So your option becomes A. Next question, with reference to the same diagram that we have studied earlier, choose the incorrectly matched pair. So you have to choose the incorrectly matched pair. Part D is gastric gland. Part D, that is the stomach, has gastric glands, that's okay. So stomach is related to gastric gland, that's okay. Now you tell me, what are the three secretions of the gastric gland? Number one, they secrete HCl, right? Then mucus is secreted by the gastric glands. Oh, what is happening? Then third, there are two enzymes that are secreted. HCl and mucus are not enzymes. Pepsin is an enzyme. If they are asking you name one enzyme that is secreted by the stomach, then you are going to write pepsin. Don't mention HCl or mucus, okay? Pepsin is enzyme, and you have one more enzyme, renin. Renin is an enzyme that is secreted and they both help in the protein digestion. So D is gastric gland, that's correct. Part C is protein digestion. Part C, that is liver, they are saying that this helps in protein digestion. So that's wrong. Liver secretes, as you know, you might be knowing it, that liver secretes bile juice, and bile juice helps in the emulsification of fat. What is the function of bile? Number one, it helps in the emulsification of fat. So it is basically helping in fat digestion. And the second function of bile is that it makes the alkaline, it makes the pH of this area, duodenum, alkaline. Okay, so alkaline pH is because of bile that is created over here in the duodenum. Okay, so this is wrong. The liver is not responsible for protein digestion. Part E, they are saying it's mixed gland. Part E, they are saying it is mixed gland. Part E is pancreas. Pancreas is a mixed gland. Why it is called mixed gland? Because it has both endocrine portion and exocrine portion. Some part of it is endocrine and some part of it is exocrine. Exocrine portion of the pancreas secrete enzymes and the endocrine portion of the pancreas secrete hormones. I hope you know that. There are two hormones that are secreted by the endocrine portion that are there in your syllabus, insulin and glucagon. And over here, the exocrine portion जो एंजाइम सिक्रीट करता है वो आपका पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका ये वाला पोर्शन जो है दैट वाज रॉन्ग, आंसर इज बी. पार्ट एफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दिस इज पार्ट एफ. लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, सो दैट इज राइट. Next, coming on to study the diagram given below and match column 1 with column 2. So you have to match this column with this column. Let's see. There, first is part K. Now over here in the diagram, if you see, part K is this. So this is diaphragm that they have made over here, right? Diaphragm का function क्या होगा? It separates the abdominal cavity from the thoracic cavity. So A का 4. दिस विल बी मैचिंग विद दिस. नाउ सबसे पहले ये देखो, ए का 4 का एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है. सेकंड देखो, पार्ट पी. नाउ व्हाट इज पार्ट पी? पार्ट पी इज रेक्टम ओवर हियर. तो रेक्टम स्टोर्स द फूड, ठीक है, स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड टेम्परेरीली. सो पी विल मैच विद 3. सो योर सेकंड बी का 3 है, ठीक है, ये वाला फिर क्रॉस हो गया. सी पार्ट जी. जी क्या है इसमें? ये वाला
वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में मार्क किया हुआ है पार्ट जी, ये वाला पोर्शन है पार्ट जी. सो दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. सो पार्ट जी इज vestigial organs, so this becomes C का 2. And last D का 1, part A over here is this one, that is a salivary gland. So salivary gland helps in the digestion of carbohydrates. So your correct answer is B. Next, the following setup that they have shown. Now these are activities that are given in your NCERT. यहाँ पे 2 एक्टिविटीज आपका NCERT में दिया हुआ है. एक में है कि सनलाइट एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक आपका दिया है कि क्लोरोफिल एसेंशियल होता है, और एक होता है कि CO2 एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. इसके लिए 3 एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं आपके इसमें NCERT में, ठीक है. यहाँ पर ये वाला जो सेटअप है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है, इसके लिए होता है, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है. फॉलोइंग सेटअप इज एम टू प्रूव दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यही सही आंसर है. वाटर इज एसेंशियल, ऐसा कोई एक्टिविटी हमने किया नहीं है. क्लोरोफिल इज एसेंशियल वाला अगर आएगा तो आपको वेरीगेटेड लीफ दिखाएंगे डायग्राम में. तो अगर आपने कहीं पे वेरीगेटेड लीफ दिख रही है डायग्राम में तो वो क्लोरोफिल के लिए है. और सनलाइट इज एसेंशियल अगर पूछा जाएगा एक्टिविटी में तो उसमें क्या करेंगे कि इस लीफ को इतना पोर्शन ब्लैक से या किसी ऐसा एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह से कवर्ड दिखाएंगे. अगर ऐसा कुछ सेटअप किया हुआ है तो वो सनलाइट के लिए होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो केमिकल है, यहाँ पे केमिकल भरा हुआ कुछ दिखा रहे हैं, तो ये तुम्हारा CO2 के लिए होता है. नेक्स्ट, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन अबव विच केमिकल इज प्रेजेंट इन द जार एंड वाई. द केमिकल दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर इज KOH और NaOH, ठीक है. और किस लिए होता है वो भी पूछा हुआ है. तो NaOH और KOH दोनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं ना. व्हाट यू हैव टू मतलब क्यों डाला है वो केमिकल, क्यों यूज़ किया है, ये भी लिखना है. पहला वाला कह रहा है कि NaOH टू रिमूव द क्लोरोफिल ऑफ लीफ. नहीं, क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए हम लोग ये वाले एक्टिविटी में अगर आप पढ़े हो तो क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए हम लोग इसको अल्कोहल में बॉईल करते हैं, बॉयल इन अल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल. तो ये वाला तो गलत है, NaOH उसके लिए यूज़ नहीं करते. नेक्स्ट इज KOH टू रिमूव द CO2 प्रेजेंट इनसाइड द जार. दिस इज राइट, ठीक है. हम लोग यहाँ पे या तो KOH यूज़ करते हैं या NaOH यूज़ करते हैं, और वो यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि हम उसका जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड उस जार के अंदर है उसको सारा रिमूव कर दें. सो KOH टू रिमूव CO2 प्रेजेंट इनसाइड द जार, HCl टू रिमूव CO2, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज B over here. Next, study the diagram carefully and select the incorrectly matched pair. So again you have to find the incorrect match pair. This is the diagram of nephron. आपको एक एक पार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए. जैसे जो तुम्हारा एक्सक्रीशन होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है. देन यू हैव यू हैव सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड यू हैव ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. They are saying that 6th part is responsible for ultrafiltration. Let's see. 6 over here, this is Bowman's capsule. ये ग्लोमेरुलस है, ये दोनों मिलाकर क्या बोला जाता है, मैल्पेजियन कॉर्पसल. इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं. और मैल्पेजियन कॉर्पसल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला स्टेप जो तुम्हारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन है यूरिन फॉर्मेशन में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. तो ये सही है. 7 सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. ना 7 ओवर हियर, ये देखो यहाँ से ये जो निकल रहा है ट्यूब, ये PCT है क्योंकि P मतलब पास, PCT मतलब बोमन्स कैप्सूल से पास. तो ये नंबर 7 PCT है. और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से होता है. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्लूकोज अमीनो एसिड आ जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेट में, वो सारा वापस से ब्लड में भेजा जाता है. तो वो यहीं से होता है, ये भी सही है बिल्कुल. नंबर 3 इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. अब आइए नंबर 3 इज दिस पोर्शन ना. अब आप PCT से नीचे आओ, ये लूप ऑफ हेनले हो जाता है, ये DCT है तुम्हारा, ठीक है. तो DCT में ही तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है जब हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस उसमें डाल दिए जाते हैं, ठीक है. तो ये भी सही बात कर रहे हैं. नंबर 2 कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम किडनी आफ्टर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. नंबर 2 के बारे में ये बोल रहे हैं कि ये पोर्शन ब्लड को कैरी अवे करता है यहाँ से. अब इसमें अगर देखो तो ये वाला जो है आर्टरी है और ये आर्टरी इसमें अंदर एंटर कर रहा है और ग्लोमेरुलस बना रहा है. तो इसका मतलब ये आर्टरी यहाँ पर ब्लड अंदर लेकर आया है, ये लेकर जा नहीं रहा है, ठीक है. यहाँ से जब ये पूरा पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी बनाया है, यहाँ से ये ब्लड वापस बाहर जा रहा है, ठीक. तो यहाँ पर नंबर 2 इज ब्रिंगिंग ब्लड ओवर हियर, इट्स नॉट टेकिंग ब्लड अवे. सो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर. नेक्स्ट, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट पेयर. हार्ट का सर्कुलेशन के डायग्राम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है, ठीक है. सो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये तुम्हारा कौन सा चेम्बर है, दिस इज योर राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल.
दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल से तुम्हारा जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, दिस इज पल्मोनरी, ये आपका पल्मोनरी वेन होता है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो तुम्हारा ब्लड पूरे बॉडी को जाता है, दिस इज एओर्टा, एओर्टा लेकर जाते हैं। इधर आइए, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है, ये तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है लंग्स की तरफ ऑक्सीजन लेने के लिए। और यहाँ पर ये जो ब्लड राइट ऑरिकल में आ रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द वेना कावास, शॉर्ट में लिखा मैंने। अब इधर देख लो, मैच करो डायग्राम, केयरफुली चूज द इनकरेक्ट पेयर। वन इज पल्मोनरी वेन, one is pulmonary vein, this is right. 2 is aorta, sorry. 2 is aorta, that is also correct. 3 is superior vena cava. 3 को superior vena cava बोल रहे, no, that is pulmonary artery, that is taking blood to the lungs for oxygenation. So this is the incorrect. 4 is vena cava, that is right. Next question. Essential element used in the synthesis of proteins is. Out of this, proteins आपको पता होगा कि proteins जो होते हैं वो amino acids के बने हुए होते हैं, ठीक है। Proteins are made up of amino acids and amino acids में आपका नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल होता है, ठीक। तो नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिक्वायर डैश मीडियम टू एक्ट। बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन के साथ में जो खाना ऊपर स्टमक से आ रहा होता है उसको जो है अल्कलाइन करता है, अभी पहले बताया था, ठीक है। वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में ही ऐड कर सकते हैं। उनको अगर हम एसिडिक मीडियम स्टमक वाला देंगे तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ऐड नहीं करेंगे। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में जो तुम्हारा ट्रिप्सिन है, तुम्हारा लाइपेज है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, वो उनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इट इज़ एसेंशियल कि इसका मीडियम को, जो तुम्हारा ड्यूडेनम वाला है एरिया है, उसका मीडियम अल्कलाइन होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स नीड अल्कलाइन मीडियम और ये अल्कलाइन बाइल जूस करते हैं। Choose the event that does not occur in photosynthesis. NCERT में बड़ा क्लियरली 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं फोटोसिंथेसिस के। अब देखो इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं दिया हुआ है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी दिया है। ये पहला पॉइंट होता है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इज टेकिंग प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहीं पर भी नहीं दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस इन फोटोसिंथेसिस। Next, in which of the following vertebrate groups the heart does not pump oxygenated blood to the different parts of the body? तो छोटे से पोर्शन में दिया है, आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने कि हार्ट जो है वो 2 चेम्बर्ड होता है, ठीक है। हार्ट आपका 3 चेम्बर्ड हो सकता है, हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है कुछ एनिमल्स में। जो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, दिस इज देयर इन पाइसेस, ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस में होता है एंड रेप्टाइल्स में होता है 3 चेम्बर्ड। सिर्फ क्रोकोडाइल ऐसा है रेप्टाइल्स में जिसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता, एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट इज देयर, एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो इसमें से जो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है पूरे बॉडी में, इसमें मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और मिक्स्ड ब्लड पंप किया जाता है, ठीक है। बहुत डिटेल में अब आपने नहीं जाना, तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोलते हैं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होके जाता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है और इसमें कंप्लीट सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और जैसे ह्यूमंस में होता है, जैसे बर्ड्स में होता है। और डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत पूछा गया है बोर्ड में। डबल सर्कुलेशन इसलिए होता है सो दैट इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज, because birds and mammals need a lot of oxygen, they have a lot of oxygen requirement, that is why birds and mammals have double circulation, ठीक है। that increases the efficiency of oxygen supply। तो इसमें अगर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप ना हो रहा हो, तो वो इसमें हो रहा है, 2 चेम्बर्ड हार्ट में हो रहा है, 3 चेम्बर्ड हार्ट में हो रहा है। मतलब आपका पाइसेस और एम्फीबियंस में हो रहा है।
Pisces and amphibians, right? Amphibian mammal, mammal में नहीं होता ऐसा. Amphibians only, ये भी गलत है, तो इससे ज़्यादा apt ये है. Reptiles and mammals, again mammals don't have that. Mammals have double circulation. So answer is Pisces and amphibians. Next, what is the final product of fat digestion? Fat digestion का final product क्या है? आपको पता है, जब आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करता है तुम्हारा ग्लूकोज में. प्रोटीन जब डाइजेस्ट करता है तो ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स दे देता है. और फैट जब ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से देखो, अमीनो एसिड तुम्हें प्रोटीन से मिल रहे हैं. फैट जब ब्रेक डाउन करता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देता है. तो बोथ बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट आंसर. आंसर डी. नेक्स्ट, if salivary amylase is lacking in the saliva, amylase word कहीं भी आएगा वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए होता है. If salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the buccal cavity will be affected? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. अगर ये नहीं होगा, इसको हटा दे तो क्या होगा, वो वाले को हटा दे तो क्या होगा. इसमें सिंपल है, सबसे सिंपल ये है कि उस पर्टिकुलर केमिकल का या उस पर्टिकुलर पार्ट का जो भी फंक्शन पूछा है, उस फंक्शन को आप कह दो, लिख दो पूरा फंक्शन. अगर आपने कुछ नहीं आता है तो वो पूरा फंक्शन लिख के ये कह दो कि ये वाला फंक्शन नहीं होगा, या वो पर्टिकुलर केमिकल जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो चीज़ नहीं होगी. इट्स सो सिंपल. सो अगर सलाइवरी अमाइलेज का तुम्हें फंक्शन पता है तो तुम वही कह दो कि जो सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन है वो नहीं होगा. सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो भी आप शुगर्स खाते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, प्रोटीन का कोई लेना देना नहीं है इससे, सलाइवरी अमाइलेज से, उसको रहन दो. स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये सही बात है, इसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग. फैट्स ब्रेकिंग डाउन, फैट का भी कोई लेना देना नहीं है अमाइलेज से. एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, उससे क्या मतलब है, अमाइलेज तो एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करेगी. तो अल्टीमेटली दिस इज योर आंसर. दिस प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज इट वॉज डूइंग द सेम थिंग ओवर देयर. Which part of the digestive system stores and concentrates bile? सीधा क्वेश्चन. गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कंसनट्रेट करता है बाइल को. अब वही बात आ गई, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि गॉल ब्लैडर रिमूव कर दे तो क्या होगा, कंसनट्रेट नहीं हो पाएगा बाइल, ठीक है, और स्टोर नहीं हो पाएगा. तो ऐसे लोगों में जो तुम्हारा फैट डाइजेशन होता है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है. ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा एकदम फैट नहीं डाइजेस्ट होगा, लीवर तो तब भी प्रोड्यूस कर रहा है फूड को, बट द थिंग विल बी दैट थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा. और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जिनका हो जाता है उनको ये बोला जाता है आप थोड़ा सा फैट ऑयली चीज़ें थोड़ा कम खाइए, क्योंकि फिर वहाँ पे कंसनट्रेट नहीं हो पा रहा है बाइल. ठीक है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज विलाई. ठीक, सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस होता है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल फीचर पूछा गया है. ठीक है, कि इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या चेंज है जिसकी वजह से उसमें एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों अच्छे से हो जाता है. तो इंटेस्टिनल जूसेस जो है वो तो सिर्फ डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्जॉर्प्शन में वो नहीं आएगा. तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 मार्क्स का आ जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विलाई, विलाई का फंक्शन बताइए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट, desert plants take up which gas at night and prepare an intermediate which is acted upon the energy absorbed during day. देखो, डेजर्ट प्लांट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो वो दोपहर में खुल जाएं, दिन के टाइम खुल जाएं, इतनी तेज़ धूप होती है कि उनका सारा का सारा वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन से लॉस हो जाएगा. फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे. ठीक है, तो इसलिए वो क्या सोचते हैं कि क्यों रात में खुल जाएं. रात में उनको एसेंशियल क्या है, स्टोमेटा क्यों खुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है उससे. ठीक है, रात में खुल जाएं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, और दिन के टाइम जब धूप निकलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे. ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में यही होता है. अब यहाँ पे स्पेशली इन्होंने डेजर्ट प्लांट्स मेंशन किया है कि कौन सी गैस लेंगे, तो कोई भी प्लांट है लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ना, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना. डेजर्ट प्लांट्स हैं, ठीक है, रात में लेते हैं, बट कौन सी गैस लेंगे, तो लेंगे वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ही. ठीक. Which of the following organisms does not show parasitic mode of nutrition? न्यूट्रिशन 3 तरह का पढ़ा है आपने, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं शो करता है, डज नॉट शो. कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट है, टिक्स पैरासाइट होते हैं ऑन एनिमल्स, टेपवर्म इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है. पैरामीशियम जो है वो पैरासाइट नहीं है, पैरामीशियम और अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. ठीक, तो आंसर इज पैरामीशियम. अ ग्लैंड not associated with the alimentary canal.
एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें से किस ग्लैंड का फंक्शन नहीं है? स्ट्रेट क्वेश्चन। लीवर होता है, अभी पढ़ा था, पैंक्रियाज भी पढ़ा है, सलाइवरी ग्लैंड भी होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का कोई लेना देना नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड आपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? एड्रिनलिन, ठीक है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक? इसमें से कौन सा स्टमक में डाइजेस्ट होता है? तुम्हारा जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी में तुम्हारा आपका स्टार्च डाइजेशन होता है, ठीक है। शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं। अगर स्टमक की बात करूँ तो स्टमक में 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, और दोनों ही प्रोटीन डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, जिसमें भी ये लास्ट में IN आ रहा है, ठीक है। अमाइलेज जो होता है दैट इज़ फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। अब वो चाहे पैंक्रियाटिक अमाइलेज हो चाहे सलाइवरी, जिसमें लास्ट में IN आ रहा है, जैसे कि ट्रिप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, फिर तुम्हारा रेनिन, ये सारे ही तुम्हारे प्रोटीन डाइजेशन के लिए है, आंखें बंद करके। और लाइपेज सिर्फ एक ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, लाइपेज फैट डाइजेशन के लिए। दूसरा कोई एंजाइम ही नहीं चाहिए तुम्हें फैट डाइजेशन के लिए। हाँ, बाइल की ज़रूरत ज़रूर होती है, बट बाइल में एंजाइम सही होता है, ठीक है। तो प्रोटीन इज चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट। देखो, तुम्हारा जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है बेसिक, वो सारा तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होकर ख़त्म हो जाता है। जो तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वो सिर्फ पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, एसिमिलेशन सेल्स में जाके होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। फंजाई में सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। सैप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं? सैप्रोट्रॉफ बॉडी के बाहर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी, दे डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, and then whatever digested food is there they absorb it back. So fungi is a saprotroph. fungi में rhizopus आता है, rhizopus में स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये पढ़ा होगा आपने चैप्टर 8 में, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स हैं, होलोजोइक हम लोग हैं, नन ऑफ द अबव, तो ऐसा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। इन अमीबा द फूड इज डाइजेस्टेड इन द, फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल बनता है अमीबा में, इसी में डाइजेस्ट होता है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। सीडोपोडिया अमीबा में फूड एनगल्फिंग के काम होता है, फूड को एनगल्फ करने के काम होते हैं, मतलब इनटेक ऑफ फूड में काम आएगा, ठीक है। एंड लोकोमोशन में भी काम आता है, अगर कभी इसका फंक्शन पूछ लिया जाए, एक बार तो पूछा है बोर्ड में इसको। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है अमीबा में, दिस हेल्प्स इन, ये किडनी का रोल प्ले करता है। जैसे फूड वैक्यूल स्टमक का रोल प्ले कर रहा है ना, वैसे ही तुम्हारा ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये किडनी जैसा काम करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, वाटर को रिमूव करता है, ठीक है। तो दिस हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइजेशन इन द एलिमेंट्री कैनाल? ये देखो, प्रोटीन डाइजेशन की बात हो रही है। अब इसमें से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, दे सिक्रीट HCl एसिड विच एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन। सबसे पहला काम यही होता है, जब आप कुछ प्रोटीन खाते हो तो तुम्हारे बॉडी में सबसे पहले HCl सिक्रीट होता है, ठीक है। और उसी HCl से बचने के लिए तुम्हारा अंदर म्यूकस लाइनिंग होती है, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप तो तुम्हारा, ओहो, सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपका ये है, ठीक है। लिख लो इसको, A या 1 ऐसा करके कुछ लिख लेते हैं, लो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ओहो, वेयर इज दैट क्वेश्चन? चलो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं बाद में, इस पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? कौन सा नहीं गलत, मतलब गलत है? Pharynx is a funnel-like structure which leads to esophagus and serves as a common passage for both food and air. This is right. This statement is right. ऐसा मार्क कर लिया करो। Cardiac sphincter is present between the esophagus and stomach. This is also right. Pancreatic juice helps in the emulsification of fat. बिल्कुल भी नहीं। पैंक्रियाटिक जूस जो है उसमें तुम्हारे 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, ठीक है, फिर तुम्हारा लाइपेज होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। तीनों ही एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन डाइजेशन के लिए हैं। इमल्सिफिकेशन क्या कौन कर रहा है? तुम्हारा बाइल कर रहा है, ठीक है। और इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो,
जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं, मान लो ये फैट ग्लोब्यूल है, अगर इस पर तुम बाइल लगा दो, मान लो ये बाइल है, इस पर अगर हम बाइल लगा देंगे, ठीक है, तो बाइल इस पर एक्ट करता है और इसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, लाइक दिस. This is known as emulsification. Emulsification means breaking down larger fat globule into smaller fat globules. ये काम आपका बाइल कर रहा होता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है, will I increase the surface area for digestion and absorption of food. ये भी सही है. तो इसमें तुम्हारा गलत कौन सा है, ये वाला आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, which soft thin yellowish layer of food debris and bacteria formed on the enamel is called, straight question, dental plaque. ये आपका छोटा सा वो ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है. डेंटल प्लाक होता है जब प्रॉपर ब्रश नहीं किया जाए तो वो एक बैक्टीरिया का और जो रिमेनिंग फूड डेब्रिस है वो एक आपका दांत पे लेयर चढ़ जाता है येलो कलर का, लाइट येलो कलर का, उसको डेंटल प्लाक बोलते हैं. अगर उसे क्लीन ना किया जाए और तब भी आप ब्रश नहीं कर रहे हो, एकदम सुननी नहीं है किसी की, है ना, तो उस कंडीशन में तुम्हारे दांत में, जिसको नहीं कहते कि दांत में कीड़ा लग गया है, मतलब वो ब्लैक ब्लैक कर का कैविटी बनने लगता है, ठीक है, दैट इज नोन एज टूथ डिके या डेंटल केरी, एक ही बात होती है. तो ये वाला भी देख लेना, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज. इतनी बात सही है. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड फंजाई. ग्रीन प्लांट्स तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, की बात तो सही थी, लेकिन फंजाई सैप्रोट्रॉफ है. दिस इज नॉट एन ऑटोट्रॉफी. ये गलत हो गया यहाँ से, और हमने पता क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है. नेक्स्ट देखो, कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सैप्रोट्रॉफिक प्लांट. कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट होता है, सैप्रोट्रॉफिक नहीं है, ये पैरासिटिक प्लांट है बेटा, ठीक है. ये भी गलत हो गया. टेपवर्म derives its nutrition from another living organism. टेपवर्म पैरासाइट होता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना डिराइव करता है, ये बात सही है. इंजेस्शन ऑफ फूड इन अमीबा अकर्स थ्रू द साइटोस्टोम. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अमीबा जो है वो सीडोपोडिया के थ्रू इंजेस्ट करता है फूड को. साइटोस्टोम में ना पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम जो इंटेक करता है वो साइटोस्टोम से करता है, ठीक. तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी. नेक्स्ट, द अनडाइजेस्टेड and unabsorbed food is temporarily stored by. आपका रेक्टम होता है, ठीक है. रेक्टम का फंक्शन होता है कि वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को स्टोर करता है, तो आंसर इज रेक्टम. नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन लीचेस एंड टिक्स. लीचेस एंड टिक्स दोनों ही तुम्हारा पैरासाइट है, ठीक है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है, ये देखो. आपको पता होगा कि सॉइल में बहुत सारे आयंस होते हैं. सबसे पहले प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो उसको टेकअप करते हैं, उन आयंस को. ढूंढो ये पॉइंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बिटवीन द रूट एंड सॉइल, ये बाद में होगा. एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेकअप आयंस. देखो ये वाला पॉइंट हो सकता है पहले, ठीक है. एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली, एक्टिवली मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एटीपी यूज होता है. एक्टिवली टेकअप आयंस. वाटर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट सिस्टम, रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स. सो पहला पॉइंट ये हो जाएगा 2. देखो 2 कहाँ पर है, ये वाला और ये वाला है. फिर 2 के बाद क्या होगा कि जैसे ही आयंस अंदर जाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, मतलब 1 2 1, ठीक है. फिर 3, आयंस जिधर जिधर जाएंगे उधर उधर तुम्हारा पानी पीछे पीछे जाता है, ठीक है. तो आयंस क्योंकि उधर गए हैं रूट्स में अंदर, तो पीछे पीछे पानी जाएगा, तो ये वाला पॉइंट होगा 3. एंड लास्ट में एक कॉलम ऑफ वाटर डेवलप कर जाता है. आंसर इज ए. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सीक्वेंसिंग वाले. ये कार्ब डाइजेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो तुम्हारा सलाइवरी अमाइलेज का रोल पहले आएगा, ठीक है, और एक ये सलाइवरी ग्लैंड दिया हुआ है. अब इनमें से देखो कौन सा पहले आएगा, ये वाला पहले आना चाहिए. सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ सिक्रीट सलाइवा. सबसे पहला स्टेप यही होगा. तो नंबर 1 कहाँ कहाँ लिखा है, एक ये है एक ये है. अब इन दोनों में से अब मैच करेंगे. सेकंड, कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, एकदम लास्ट स्टेप है. सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. अब ये वाला पॉइंट आना चाहिए. तो 1 का 3, अरे फिर से सेम हो रहा है. फिर देखो पैंक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट. पैंक्रियाटिक अमाइलेज तुम्हारे ड्यूडेनम में सिक्रीट होता है बाय द पैंक्रियाज. सो नेक्स्ट विल बी दिस पॉइंट. अब 4th वाला ये आया, ये आ गया. एंड लास्ट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, फाइनली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है. तो करेक्ट आंसर इज ए. तो सबसे पहले ये होता है, फिर ये होगा, फिर तुम्हारा ये, फिर ये वाला पॉइंट, ठीक है.
इसमें ये वाला क्वेश्चन ना 3 मार्क्स का भी आ जाता है कि आप प्रोटीन डाइजेशन डिस्क्राइब करो, आप कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को डिस्क्राइब करो। अगर कभी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आता है, वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पे, मान लो तुम्हारा ये रिटन पोर्शन में आ जाए, तो मतलब एक प्रेजेंटेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। आप स्टार्ट करना डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप जब लिखोगे, मैं वो भी बता दे रही हूँ ऑब्जेक्टिव के साथ में, बिकॉज आपका लिखने वाला पोर्शन भी अच्छा खासा रहता है। सपोज आपने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्क्राइब करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, तो तुम स्टार्ट करो बक्कल कैविटी से। सबसे पहले तो यही बताओ कि बक्कल कैविटी में क्या डाइजेशन होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में हो रहा है, कौन सा एंजाइम कर रहा है, कहाँ से सिक्रीट हुआ है, ये सारी चीज़ें लिख दो। तो बक्कल कैविटी में सलाइवा सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। एंड काम क्या करेगा, इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स शुगर्स इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। इस तरह से पॉइंट वाइज हेडर बना के जरूर लिखा करो। सेकंड, आप स्टमक में आएंगे, सेकंड पार्ट क्या है, स्टमक ही तो होता है तुम्हारा। स्टमक पर आ जाओ। स्टमक में देखो, तुम्हारा एनसीईआरटी ये कहता है कि स्टमक में कुछ डाइजेशन नहीं हो रहा कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि उसमें 2 ही एंजाइम दिया है, इन्होंने पेप्सिन दिया है, तुम्हारा रेनिन दिया है, वो प्रोटीन के लिए है। तो नो डाइजेशन विल टेक प्लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नो डाइजेशन ऑफ कार्ब, लिख दो इसको। फिर थर्ड आइए स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रीट कर रहे हैं, ये बात लिखिए, पैंक्रियाज सिक्रीट पैंक्रियाटिक अमाइलेज which ultimately break down carbohydrate into what? Into glucose। ये तुम्हारा 3 पॉइंट्स हो गए कार्ब के डाइजेशन के लिए। हमेशा तुम्हारा कार्ब का आ जाए, तुम्हारा इससे फैट का पूछा जाए डाइजेशन, आपसे प्रोटीन का पूछा जाए, इसी तरह से हेडिंग बनाकर लिखो। अगर प्रोटीन का पूछा जाएगा तो बक्कल कैविटी में प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता, कोई एंजाइम ही नहीं है, इसलिए नहीं होता। स्टमक में होता है, तुम्हारा पेप्सिन है, रेनिन है, होगा वहाँ पर। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन से होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप इस तरह से ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो। ऑलवेज ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स, दैट फेचेज यू मोर मार्क्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन का थोड़ा फर्क पड़ता है। एक है कि खाने को ऐसे ही उठा के दे देते हैं, ठीक है, जैसे बनाया, जिस चीज़ में बनाया ऐसे उठा के पूरा ला के भगोना रख दिया, दैट्स नॉट अ प्रॉपर वे। इफ़ यू सर्व इट प्रॉपरली, डेकोरेट इट, देन इट लुक्स मच प्रिटियर। भूख बढ़ जाती है, आ जाओ। Which of the following is not true with respect to the human digestive system? देखिए, involuntary contraction relaxation of esophagus is peristalsis, सही बात है। खाली esophagus का नहीं, पूरा गट में जो भी ऐसा contraction relaxation हो रहा है वो सारा peristalsis है। Pyloric sphincter is present between the small intestine and the large intestine। small और large intestine में pyloric sphincter होता है, ये बात गलत है। Breaking down of larger fat globules into smaller fat globules is called emulsification of fat, सही बात है। Small intestine of herbivores is longer as compared to carnivores, ये भी सही बात है। तो तुम्हारा गलत सेंटेंस ये वाला हुआ। पाइलोरिक स्फिंक्टर आपका प्रेजेंट होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्फिंक्टर विच गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ एनस इज कार्डियक स्फिंक्टर, गलत। करेक्ट पता लगाना है तो हम साथ में करेक्शन करते चल रहे हैं। स्फिंक्टर विच गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ एनस इज एनल स्फिंक्टर, ठीक है। देन लाइपेज हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दिस इज राइट। नो, yes, sorry, it's right. Mucus is responsible for the digestion of milk protein, no, mucus HCl से बचाता है स्टमक को, ठीक है। लीचेस एंड अमीबा आर होलोजोइक इन नेचर, अमीबा तो होता है होलोजोइक, बट लीचेस जो होती हैं ये पैरासाइट होती हैं, ठीक है। तो तुम्हारा वही सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, आ जाओ। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हेल्प करता है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स डिजॉल्व इन द फॉर्म, जब वहाँ पे सक्शन प्रेशर, आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट में कि जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वहाँ सक्शन क्रिएट होता है ऊपर लीव्स की तरफ, उसी की वजह से जो तुम्हारे रूट्स हैं वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब करके एक स्टडी कॉलम बना के वो ऊपर की तरफ पानी खींचता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इन टेम्परेचर रेगुलेशन, हाँ, जब वाटर लॉस होता है ना तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट को, तो ट्रांसपिरेशन अल्टीमेटली ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, सो इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑल्सो। ऑल द पॉइंट्स आर राइट, ऑल ऑफ द अबव।
व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन? जब हम इनहेल करते हैं तो इसमें से करेक्ट पैसेज कौन सा है? देखो सबसे पहले नॉस्ट्रल्स आएंगे, तो ये वाला पॉइंट को कंसिडर करके देख लो आगे। नॉस्ट्रल्स है, फिर फेरिंग्स आते हैं, बाद में लैरिंग्स आता है, तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई, यही सही है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं, उसमें पहले ना लैरिंग्स दे दिया, लैरिंग्स बाद में आता है। इन वुडी स्टेम्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसेल, स्ट्रेट, स्टोमेटा, ग्रीन हर्बेशियस जो एरियाज होते हैं ना प्लांट्स के, लीफ है, ग्रीन स्टेम है, वहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू होता है। नॉर्मल बीपी सिस्टोलिक डायस्टोलिक इज 120/80 ब्लॉक में दिया हुआ है। और कौन सी मशीन यूज होती है? स्फिग्मो, सॉरी तुम्हारा स्फिग्मो मैनोमीटर यूज होता है टू मेजर ब्लड प्रेशर। Which part of the alimentary canal receives bile from the liver? इतनी देर से बता रही हूँ, डिओडेनम। डिओडेनम तो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का तो फर्स्ट पार्ट होता है, वो डिओडेनम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। वो जो सी शेप्ड पार्ट होता है ना ऐसा करके, जहाँ पे बाइल अपना, यहाँ से बाइल जूस आ जाता है, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, ये तुम्हारा स्टमक था यहाँ पर, तो ये जो पोर्शन है ये डिओडेनम है। पैंक्रियास से भी एंजाइम्स यहीं आते हैं, बाइल से भी एंजाइम्स यहीं आते हैं, तो डिओडेनम। During vigorous exercises, the muscle cells start respiring anaerobically, which leads to the accumulation of dash, leading to muscle cramps. अब ज़रा ये जो तुम्हारा वो जो चार्ट दिया है ना, स्कीमेटिक चार्ट एक दिया हुआ है रेस्पिरेशन के अंडर में, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। इसमें देखो क्या होता है, क्या था उस चार्ट में, तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूवेट, यही तो था, ठीक है, लो अच्छे से लिखते हैं इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्लूकोज गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूवेट, ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों जगह काम आए, मतलब दोनों जगह पहला स्टेप यही होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग कंडीशंस होती हैं। इस पाइरूवेट को अगर तुम ऑक्सीजन दे दो, ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब पाइरूवेट को अगर तुम ऑक्सीजन दोगे तो ये ऑक्सीजन को पकड़ के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है, वहाँ जाकर अब देखो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। और इसके बाद फिर ये पाइरूवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, एंड यहाँ से हमको एटीपी मिलता है, 36 एटीपी मिलता है। कुछ बुक्स में 38 एटीपी लिखा है, वो भी राइट है, ठीक। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा होता है तुम्हारा ईस्ट में, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिला, मान लो ये ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है, इसको तुमने ऑक्सीजन नहीं दिया तो ये दुखी हो जाएगा, ठीक है। जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो वो ऐसा अल्कोहल वगैरह के चक्कर में पड़ जाता है, मतलब गलत बात है बट फिर भी ऐसे समझने के लिए कर सकते हो। तो ये पाइरूवेट अगर ऑक्सीजन इसको नहीं दोगे तुम, ठीक है, बहुत प्यार करता था, उसको नहीं दोगे तो ये अल्कोहल वगैरह बनाने लग जाता है, तो यहाँ पे इथेनॉल बनता है, ठीक है, और ऐसा ईस्ट में हो रहा है, तो इथेनॉल बनेगा और तुम्हारा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और तुम्हारा यहाँ से बहुत ही कम एनर्जी बनता है, 2 एटीपी। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर, मतलब बहुत ही कम एनर्जी सिंथेसाइज हो है। फिर लास्ट में देख लो, मान लीजिए दूसरा कलर लेते हैं, अब क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की एक कंडीशन होती है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम से किसी को ये हुआ कि अच्छा आज से हमने बहुत ही ज़्यादा वेट गेन और वेट लूज़ करना है, एकदम से पतले हो जाना है, होता है ना बीच बीच में वो एकदम ऋतिक रोशन बनने की फीलिंग आती है सबको, तो ऐसे केस में एकदम से किसी ने एक्सरसाइजेस शुरू करी हैं, तुम्हारा बॉडी अडेप्टेड नहीं था इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जितना तुम्हें जोश आया है, ठीक है। उस कंडीशन में ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तुम्हारा एनर्जी रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ गया, तुम्हारे मसल सेल्स इसके लिए अडेप्टेड ही नहीं थे, तो क्या होगा, तुम्हारा 36 एटीपी जो ऊपर बन रहा है वो कम पड़ता है।
तो मसल सेल्स सोचते हैं लाओ हम भी थोड़ी हेल्प कर दें, जब इन पे पागलपन सवार हुआ है तो थोड़ा सा हम भी एनर्जी दे देते हैं इनको। तो उस कंडीशन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशन में, हमारे मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, और साथ में 2 ATP जनरेट होते हैं। वैसे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, बट फिर भी 2 ATP बना है। ये जो लैक्टिक एसिड है, ये तुम्हारा है तो एसिड, स्टमक में होता है, वो भी कितना डेंजरस होता है ना, ये भी एसिड है, ये भी नुकसान करेगा। तो लैक्टिक एसिड है, मसल्स के बीच बीच में ना ये मसल सेल्स में जाके अक्यूमुलेट कर जाता है, तो उससे मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन का आंसर है मसल क्रैम्प्स। फाइन। नेक्स्ट, Which of the following cell lack nucleus and mitochondria? तुम्हारा WBC में न्यूक्लियस होता है, लिम्फोसाइट भी एक तरह का WBC है, तो इसमें भी न्यूक्लियस होगा। प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा कि जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये फ्लोएम का पार्ट है। फ्लोएम में 4 तरह का सेल होता है, जिसमें आपने सीव ट्यूब्स पढ़े होंगे। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं जो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसमें कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेनियन सेल दिया था तो इसके पास भी न्यूक्लियस होता है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी का क्योंकि हम न्यूक्लियस हटा देते हैं, इसीलिए ये बीच से ऐसा बाइकॉन्केव हो जाता है। और ऐसा शेप, मतलब न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया हटाने का मेन पर्पस ये था कि वो ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाए, जो भी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एयर, इसका आंसर आरबीसी है। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, ये रेस्पिरेशन जहाँ पे स्टार्ट हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग में ये एक्टिविटी दिया हुआ है कि आपने लाइम वाटर लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें एयर ब्लो करो, तो वो लाइम वाटर धीमे धीमे करके ना मिल्की टर्न कर जाता है। तो वो जो मिल्की टर्न किया वो क्यों किया है, कौन सी गैस तुमने इनहेल कर दी है ऐसी उसमें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल कर रहे हैं, हम लोग को पता है। तो ये प्रूव करता है इस चीज़ को, ठीक है। तो CO2 इज द आंसर। With reference to dialysis, choose the incorrect statement. डायलिसिस पढ़ा होगा, जब किडनी खराब हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है और उसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं, या इसी को हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। उसी के बारे में ये है, AKB ब्लॉक में दिया हुआ है। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। सही बात है। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विच आर सेमी परमिएबल, ये भी सही बात है। सेमी परमिएबल होते हैं तभी उसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो निकल जाता है बाहर की तरफ। Dialyzing fluid has the same osmotic pressure as the blood except that it is devoid of nitrogenous waste. This is also right, दिया हुआ है ब्लॉक में। Normally a healthy adult initial filtrate in kidney is about 100 लीटर, ये गलत है। 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, 100 लीटर नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, ऑक्सीजन लेके आया था देने के लिए, दे दिया सेल को, जब निकलेगा तो वहाँ से CO2 लेकर जाएगा, तो इज रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दे दी उसने। नेक्स्ट, एनिमल इन विच ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन लंग्स। देखो जितना भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है सब में लंग्स में हो रहा है, सारे में ऑक्सीजन जो मतलब तुम्हारा रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, जो ऑक्सीजन का लेना है वो सारा लंग्स के थ्रू हो रहा है। जो तुम्हारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रह रहे हैं उनमें गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो टैडपोल जो है वो आपको पता है कि एक्वेटिक है, फिश एक्वेटिक है, तो टैडपोल और फिश में तुम्हारा गिल्स के थ्रू होता है और लंग्स के थ्रू नहीं होता है। फ्रॉग जो है वो टेरेस्ट्रियल है, तो इसमें लंग्स के थ्रू तुम्हारा वो होता है, बकल कैविटी के थ्रू भी होता है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ A and B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रेफरेंस टू लिम्फ। लिम्फ आपने पढ़ा है, लिम्फ इंपॉर्टेंट है, लिम्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन में या आ सकता है, इंपॉर्टेंट होता है, लिम्फ पढ़ लेना। और ऐसा कोई भी टॉपिक हो जो तुम्हें नहीं समझ आता है, पर्टिकुलर टॉपिक है, या आप चाहते हो कि 1 शॉट रिवीजन किसी पर्टिकुलर चैप्टर का चाहिए हो, तो मुझे बता देना, कमेंट्स में प्लीज़ लिख दीजिए। अगर आपको कोई चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन चाहिए तो वो भी हो सकता है, करा सकते हैं। इसी पैटर्न पे अगर और चैप्टर्स कवर करने हैं तो वो भी करा सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि तुम्हारे पास कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से जो तुम्हें नहीं समझ आए हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसके छोटे छोटे क्लिप्स बना के डाल देंगे। एंड आपको डायग्राम्स बनाने में भी डिफ़िकल्टी होती है, तो देर आर ईजी वेज ऑल्सो। जैसे NCERT में जो नेफ्रॉन का डायग्राम दिया है कि है डिफ़िकल्ट है आपके बनाने के लिए,
अगर आप ये चाहते हो कि डायग्राम्स को ईजिली बनाने के लिए कुछ वीडियो चाहिए तो मतलब कमेंट प्लीज़ करिए सो दैट वी गेट टू नो दैट व्हाट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू. सो व्हाट एवर यू विल कमेंट वी विल ट्राई टू कवर अप दैट. ओके. Which of the following is wrong with reference to lymph? Lymph carries digested and absorbed fat from the small intestine, right? It drains excess fluid from extracellular space back into the blood. This is also right. It is also called tissue fluid. ये भी सही है. It contains more proteins than blood. ये गलत है. उसमें less proteins होते हैं blood के comparison में. तो this is the wrong statement with reference to lymph. बाकी ये वाला function है lymph का. ठीक है. ये वाला और ये वाला तुम लिम्फ के फंक्शंस में लिख सकते हो अगर पूछ लिया जाए तो. फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके रेफरेंस में. इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिएट्स ऑफ द रूट्स स्टेम्स लीव्स are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant. Right. सही बात है. Transpiration creates a suction which pulls water from the xylem cells to the roots. ये भी सही है. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. This is also right. Transpiration दिन के टाइम इफेक्टिव होता है और रूट प्रेशर जो तुम्हारा होता है ना ये रात में इफेक्टिव होता है. Then phloem transports amino acids and other substances only in downward direction. This is wrong. फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है. जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल है. ठीक है. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट. ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम. देखो ऐसा नहीं है कि प्लांट्स ने CO2 लिया और उसके बदले ऑक्सीजन दिया, ऐसा नहीं होता. जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन होता है वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज़ हो जाता है. ठीक है. जो वाटर है उसका ऑक्सीजन लिबरेट होकर तुम्हारा निकलता है लास्ट में प्लांट से. तो वाटर आंसर है. वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द पॉटेड प्लांट्स इन. वाटर एब्जॉर्प्शन देखो ये थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा. वाटर एब्जॉर्प्शन में तुम्हारा ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है. ठीक है. अगर आप रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज कर दो किसी तरह से तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ जाएगा. अब इसमें से कहाँ से तुम्हारा ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है ये देखो. शेड में रखने से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. अंडर द फैन रखोगे तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा. जितनी तेज़ी से फैन चलेगा उतनी तेज़ी से वाटर लॉस होगा, है ना, ड्राई हो जाएगा तो और ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा. तो फैन में रखने से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा तुम्हारा. डिम लाइट में रखने से भी कुछ नहीं है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज नहीं होगा. कवर्ड विथ पॉलीथीन बैग इससे तो और रुक जाएगा ट्रांसपिरेशन. तो अगर हम फैन में रख दें प्लांट को तो उससे ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा. जैसे ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा तो उससे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा. ठीक है. तो थोड़ा सा इंडायरेक्ट घुमा के पूछे हैं. A vein which carries oxygenated blood back to the heart is. Oxygenated blood कहाँ से लेकर आएगा? लंग्स से लेकर आता है हार्ट में. ठीक है. तो कौन सा वेन ऐसा करता है? हमारा जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है. वेना कावा जितने भी हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा लाते हैं. ये लंग्स से ला रहा है फ्रॉम लंग्स. फ्रॉम लंग्स. ठीक है. और ये जो है तुम्हारा बॉडी पार्ट से लेकर आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक. नेक्स्ट. अच्छा FIB है, जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं. पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था वो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं 1 ग्लूकोज से. 3 कार्बन कंपाउंड विच इज ऑल्सो नोन एज पायरुवेट इसका दूसरा नाम है. इसको पायरुवेट भी बोलते हैं. नेक्स्ट. एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई. जो तुम्हारा ट्यूब सिस्टम होता है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है. जो एक्चुअली एक्सचेंज हो रही है O2 आई इधर CO2 उधर, तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना वो लंग्स में हो रहा होता है. लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड. ब्लड में एक लिक्विड पार्ट होता है, कुछ सेल्स पड़े होते हैं. जो लिक्विड पार्ट होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं. और जो तुम्हारे सेल्स होते हैं वो WBC है, RBC है, प्लेटलेट है. RBC का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, WBC का फंक्शन होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना. तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा हो जाएगा प्लाज्मा. गम्स एंड रेजिन्स आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट में आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के. बोमन्स कैप्सूल
एंड ग्लोमेरुलस टेकन टुगेदर मेक, अभी जब डायग्राम वाला क्वेश्चन कराया था तो उसमें ये बताया था, इट इज कॉल्ड मैलपीजियन कॉर्पसल, ठीक है। डैश ब्लड सेल्स मेक एंटीबॉडीज वेयर डैश ब्लड सेल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, अभी बताया है। एंटीबॉडीज WBC बनाते हैं, रेस्पिरेशन में RBC हेल्प करता है, ठीक है। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इन वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ना ये सारा PCT से, ये भी हो चुका है। यूरिन फॉर्म्ड बाय ईच किडनी फाइनली एंटर्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर, जो किडनी से तुम्हारा ट्यूब निकलता है उसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, ठीक। यूरिन इज स्टोर्ड इन द वेयर इट इज स्टोर्ड यूरिनरी ब्लैडर, यू भी लिख के दे रहे हैं, urinary bladder until the pressure created leads to the urge to pass it out through the, pass out किससे होते हैं, यूरेथ्रा से, ठीक है। substance like dash is transferred into phloem tissue using energy from ATP, वैसे तो ग्लूकोज होता है, एक स्पेसिफिक सुक्रोज दिया हुआ है NCERT में, ठीक है। तो सुक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ATP यूज करके। नेक्स्ट आइए, एजर्शन रीजन में तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। एजर्शन रीजन करने का एक ही तरीका है कि देखो, एजर्शन 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। एजर्शन पढ़ो, वो अगर सही है तो उसमें टिक लगा दो। रीज़न पढ़ो, अगर तुम्हें रीज़न सही लग रहा है तो उसमें भी टिक लगा दो, अगर गलत है तो क्रॉस लगा दो, तो कन्फ्यूजन नहीं होता। कन्फ्यूजन तुम्हारा मैक्सिमम कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है रीज़न एजर्शन में वो जब होता है जब तुम्हारे दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, एजर्शन भी सही है, तुम्हारा रीज़न भी सही है। फंसते तुम लोग इन 2 ऑप्शंस में हो कि एक्सप्लेनेशन सही है कि गलत है, A-B में ज़्यादातर फंसते हैं आप। देखो कि कोई कनेक्टिंग बात हो रही है या नहीं, एजर्शन जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग रीज़न है या नहीं है, इतनी बात को कनेक्ट करना है खाली तुमने, ठीक है। और टिक लगाने वाला आदत ज़रूर डालो, ऐसे ही करेंगे अभी हम लोग। देखो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन सबको पता होगा कि A एजर्शन रीज़न बोथ आर राइट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, B assertion reason true, reason is not correct, C assertion true, reason false, assertion reason both are false is D, and if reason is true assertion is false then we'll mark as E। अब आ जाओ, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इन प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट्स में फूड जो एक्स्ट्रा बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ये सही बात है, टिक लगा लो छोटा सा। इन ह्यूमन्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एनिमल्स में जो एक्स्ट्रा फूड बनता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ये भी सही बात है, दोनों पे टिक लगा लो। अब देखो कुछ कनेक्शन है आपस में दोनों का, एज सच कोई देयर इज नो कनेक्शन। देखो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो बोथ आर राइट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा B यहाँ पर। नेक्स्ट आओ, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स, प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए होती है, सही बात है। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड हैव लार्ज प्रोजेक्शंस और प्रोपोर्शंस ऑफ डेड सेल्स, प्लांट्स को एनर्जी क्यों नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो लोकोमोशन शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम पोर्शन है ना प्लांट्स में वो डेड सेल का है, डेड सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो तो पहले ही से मरा हुआ है, उसको क्या एनर्जी दे दोगे। तो ये रीज़न भी सही बात है इसकी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही था और वो रीज़न भी सही है, तो इसका आ जाएगा आपका A। फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज कॉल्ड टेम्परेरी स्टमक, सही बात है। इन अमीबा डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन द फूड वैक्यूल, ये भी सही बात है, दोनों सही बात है। और फूड वैक्यूल को स्टमक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें डाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो आंसर अगेन A, बोथ आर राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Urethra of male is called urinogenital canal, correct? Urethra of male carries both urine and sperm. This is also right. Urinogenital canal क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो यूरिन और स्पर्म दोनों चीज़ें कैरी कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं, तो अगेन A। ट्रांसपिरेशन lowers down plant temperature, अभी अभी बताया होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन reduces the concentration of mineral salts, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे A ट्रू है तुम्हारा, R फॉल्स है, ये C ऑप्शन में था, A ट्रू R फॉल्स, तो C लिख दो ऑप्शन में। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट स्टेटमेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सही बात ये भी है,
लेकिन कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें विलाई प्रेजेंट है। दूसरा रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, इंटेस्टिनल जूसेस हैं, सारे एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए तीनों के, इसलिए उसमें कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। बात दोनों सही है बट कोई कनेक्शन नहीं है। बी रीज़न गलत है। व्हेन एयर इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। सही है, होता है, लाइम वाटर टर्न मिल्की। क्यों? एयर कंटेन्स 21% नाइट्रोजन एंड 78% ऑक्सीजन है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, ये इधर का उधर कर दिया सारा, ठीक है। 21% ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। तो यहाँ पर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तुम्हारा सी ऑप्शन हो जाएगा। वेन्स हैव थिन वॉल्स टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। वेन्स हैव थिन वॉल्स, वेन्स में थिन वॉल्स होती हैं टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। फिर ब्लड इन वेन्स इज नॉट अंडर मच प्रेशर। आर्टरीज वेन्स होती है, वेन्स हैव थिन वॉल्स टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, ये सही बात है। ब्लड इन वेन्स इज नॉट अंडर मच प्रेशर, ये भी सही बात है। वॉल जो है वो आर्टरीज की थिक होती है, ठीक है, तो दोनों बात सही है। और वेन्स का जो ब्लड जो वॉल होता है ना, वो थिन ही इसीलिए होता है क्योंकि उसमें इतना प्रेशर नहीं होता। आर्टरीज का वॉल इसलिए थिक होता है क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार आया है पहले भी, तो दिस इज ए। नेक्स्ट, ह्यूमन्स हैव अ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। ह्यूमन स्किन इज परमिएबल टू वाटर। परमिएबल टू वाटर मतलब हम पानी ऐसे डालेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा। ऐसे होता है कि स्विमिंग पूल में चले जाओ, नहा लो, तो उससे पानी का तुम्हारा डेफिशिएंसी जो है, रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाए, ऐसे नहीं होता। पानी हमारे स्किन से अंदर पेनिट्रेट नहीं करता उस क्वांटिटी में, ठीक है। तो ह्यूमन स्किन इज परमिएबल टू वाटर इज रॉन्ग अगेन। अरे रे, दिस विल बी ऑप्शन सी, ए ट्रू आर फॉल्स। All proteins in our food are completely digested in the small intestine only। ये गलत बात है। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं ओनली। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सॉरी व्हाट इज हैपनिंग। देखो, आई एम सॉरी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितना भी प्रोटीन होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये सही बात है। अगर हम ये कंप्लीटली वर्ड यहाँ से हटा देते और सिर्फ ये बोलते कि ऑल प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। बट क्योंकि यहाँ कंप्लीटली वर्ड यूज़ हुआ है तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट डाइजेशन जो होता है वो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास एंड रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज ऑल्सो राइट। और ट्रिप्सिन ही फाइनली अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा जो प्रोटीन कंटेंट है उसको, ठीक है, ट्रिप्सिन ही डाइजेस्ट कर रहा है, तो दिस इज करेक्ट। ए बोथ राइट, रीजन इज करेक्ट। दिस इज द लास्ट वन, लास्ट स्लाइड। ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमंस में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड नहीं मिक्स होता, सही बात है। ह्यूमंस हैव डबल सर्कुलेशन, इसीलिए मिक्स नहीं होता, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए, बोथ आर राइट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सलाइवा हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, राइट। कौन सी एंजाइम सलाइवा में होती है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देती है उसको? यहाँ पे रीजन लिखा है कि सलाइवा अमाइलेज की वजह से होता है, गलत। अमाइलेज जो है कार्ब डाइजेशन के लिए होती है। यहाँ पे लाइपेज सॉरी जो तुम्हारा लाइजोजाइम एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम, ठीक है। लाइजोजाइम की वजह से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये लाइजोजाइम तुम्हारा मतलब टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, तो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसकी वजह से। तो यहाँ पर ए ट्रू है, आर फॉल्स है। नेक्स्ट 62, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स इज थिकर एज कम्पेयर टू ऑरिकल्स, ये सही बात है, ठीक है। देन नेक्स्ट, वेंट्रिकल्स पंप विद मोर प्रेशर एज कम्पेयर टू ऑरिकल्स, ये भी सही बात है। रीज़न ही सही है कि ऑरिकल जो वेंट्रिकल्स का वॉल होता है वो इसीलिए थिक होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से पंप करता है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सब्जेक्टिव वाले में आ जाता है, तो इसका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट इज इमल्सिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, दिस इज राइट, ठीक है। Then after fats are emulsified, action of enzyme amylase gets significantly increased. Amylase enzyme का कोई भी लेना देना नहीं है with the fat digestion. So over here lipase enzyme is responsible for fat digestion. अगर lipase लिखा होता तो तुम्हारा आंसर ए हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है, तो आपका आंसर इसके लिए सी होगा। नेक्स्ट, ciliated epithelium is present in the inner lining of trachea.
Ciliated epithelium is present in the inner lining of trachea. This is right. Reason they are giving why it is present: ciliary movement propel the mucus and foreign particles towards the nasopharynx. This is also right because this work has to be done. That is why cilia is present. So cilia का function ही वही है वहाँ पर. ठीक है. तो this is also right. Again, option A is right. Last, excretion is the biological process by which harmful waste are removed from an organism's body. This is right. Mode of excretion is same in both unicellular and multicellular organisms. This is wrong. Unicellular organism में generally जो excretion हो रहा होता है वो simple diffusion से हो जाता है, जैसे कि तुम्हारा अमीबा में होता है. ठीक है. डिफ्यूजन है या उनके में जो है सेम नहीं होता. हमारे पास किडनी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन है. ठीक है. तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं फॉर दिस फंक्शन. वी डोंट हैव सच, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव सच ऑर्गन्स. ओके. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड विद दिस लाइफ प्रोसेसेस, एंड लेटर ऑन इफ यू वांट to do the other chapters in the same way like in MCQ pattern, then you can let us know in the comment section. In case you want one short revision of any chapter, or if you have doubt in any particular topic, then you can also let us know. And please study properly now. It's very less time is left, so let's hope that you get good marks. Okay, all the very best for your exams. Do let us know in the comment box whatever doubts you have or whatever extra things you want to know about, or on any particular topic or any particular chapter also. Thank you.